Hello everyone, welcome back to Geeks for Geeks. So we are in the day 4 of our 25-day ML workshop, and in this session we need to discuss about tuples, list and sets in Python. So before starting with it, I just want you to let me know if I'm audible and if my screen is visible to all of you. Just put it in comments if my screen is visible and if I'm audible to all of you. Let me know if I'm audible and if my screen is visible to all of you. Okay, so let's start with it. So the very first thing that we need to discuss is about list here, right? So after list we'll be going to tuples and then we'll be going to set in Python. Fine. So list में क्या होता है कि हमारे पास कोई एक वेरिएबल होगा जिसके अंदर बहुत सारे आइटम्स हमें स्टोर करने हैं. Fine. So we'll be having a variable and inside a single variable we have to store multiple items. Right? तो इसका सिंटेक्स कुछ ऐसा होता है, पहले आपको यहाँ पे वेरिएबल नेम लिखना होता है, then equals, and then inside square brackets you have to put in the items, right? जो भी items आपको लिखने हैं. So say I want to put the first item here, so it will be item 1, then put a comma, then you have to write item 2, item 3 and so on. Now these items can be like, this can be an integer or it can be a float value or it can be a string as well, right? So this is basically how it works. It can be an integer value, float value, string value or a boolean value. It can be anything. And it is not necessary that if the first item is an integer value, so the second item has to be an integer value. It can be a string value also. So ये चेंज हो जाता है कि जैसे अगर आपने आइटम 1 लिया है, अगर आइटम 1 आपका इंटीजर है तो आइटम 2 कैन बी फ्लोट, आइटम 3 कैन बी स्ट्रिंग, आइटम 4 कैन बी बूल एंड सो ऑन. आइटम 5 आपका फिर से इंटीजर हो सकता है. फाइन. या फिर ये भी हो सकता है कि जितने भी आइटम्स हैं सारे ही आइटम्स आपके इंटीजर्स हैं या फिर स्ट्रिंग्स हैं या फिर फ्लोट हैं, बूल है, मतलब कुछ भी हो सकता है. आपको जो आइटम स्टोर करने हैं दे कैन बी ऑफ एनी डेटा टाइप, राइट? तो अगर आपको ये चीज करनी है तो सबसे पहले आपको वेरिएबल नेम लिखना है. वेरिएबल नेम बेसिकली विल बी योर लिस्ट नेम, राइट? तो यहाँ पे आप लिस्ट नेम कुछ भी ले सकते हो. फॉर एग्जाम्पल आई हैव टेकन द लिस्ट नेम एज लेट्स इट इज एल, and then inside square bracket we have to put in the items. So say I'm saying the items are 1, 2, 3.
हम रिज्यूम कर लेते हैं कि हमने अभी ये लिस्ट बनाई है L, दिस इज द लिस्ट नेम, देन इनसाइड स्क्वायर ब्रैकेट्स यू आर टेकिंग द आइटम्स एज 1, 2 and 3, राइट। तो इसमें ये आपका आइटम 1 हो गया, या आइटम 2 हो गया, या आइटम 3 हो गया। तो आपकी एक लिस्ट क्रिएट हो गई जिसके अंदर टोटल 3 आइटम्स हैं। फाइन। अब ये जो 3 आइटम्स है आपको कैसे पता चलेगा, मतलब एक तो हो गया कि हमने सिर्फ 3 ही आइटम्स बनाए और ये हमें पता है कि हमने सिर्फ 3 ही आइटम्स ऐड किए। ना मान लो कुछ ऐसा है कि आपकी लिस्ट के अंदर 1 लाख आइटम्स हैं, ठीक है। अब आपको कैसे पता चलेगा कि आपने कितने आइटम्स ऐड किए, तो उसके लिए भी एक फंक्शन होता है, दैट इज अ लेन फंक्शन। लेन फंक्शन से आपको ये चीज पता लग जाती है कि कितने आइटम्स आपकी लिस्ट के अंदर हैं। तो सबसे पहले तो लिस्ट को हम प्रिंट कर लेते हैं। I'm just printing L in the next line and then run the code. Also, Google Collaboratory अगर आप यूज कर रहे हो या फिर Jupyter Notebook अगर आपने यूज किया है, तो उसमें अगर एक ही वेरिएबल है तो उसके लिए आपको प्रिंट स्टेटमेंट यूज करने की जरूरत नहीं है। फाइन। अगर आप यहाँ पे L के साथ प्रिंट यूज करोगे तो भी वही बात है, द आउटपुट वुड बी द सेम। अगर नहीं करोगे तो भी सेम ही चीज है। अगर एक वेरिएबल अगर आप प्रिंट कर रहे हो तो उसके लिए प्रिंट फंक्शन यूज करने की जरूरत नहीं है। Fine. Now I'm inserting a new code segment for the length. So I'm checking the length of L now. And let's run this code. I just use the len function, len, and then inside brackets I have written the list name, that is L in our case. So it has returned me with the number of items stored inside the list L, that is 3. Right, so in the output you can see the output here is 3. Right. अब इसके बाद ये तो हो गया कि आपको लेंथ मिल गई लिस्ट की, आपने लिस्ट बना ली, उसको प्रिंट कर लिया। Now say my list contains 1 lakh items inside it, right? और आपको इसके अंदर जो 50,000 आइटम है वो आपको फाइंड करना है। तो वो आप कैसे करोगे? यू नो द कॉन्सेप्ट ऑफ इंडेक्सिंग, हमने पिछले सेशन में चीज डिस्कस की थी। इंडेक्सिंग में क्या होता है कि अगर मेरे पास ये 6 आइटम्स है यहाँ पे, so these are the items inside the list. So indexing starts from 0. So the first item will be having an index of 0, then it will be 1, 2, 3, 4 and 5, right? तो होता क्या है बेसिकली यहाँ पे, अगर आपका 4th आइटम है तो उसका इंडेक्स क्या है 3, राइट? अगर 6th आइटम है तो उसका इंडेक्स है 5। तो अगर 50,000, अगर ये आपका आइटम नंबर है तो इसका इंडेक्स क्या होगा? इट विल बी 50,000 माइनस 1, राइट? तो यही चीज हमें करनी है कि अगर आपको आइटम एक्सेस करना है, कि मतलब मान लो मेरे को चेक करना है कि 4th आइटम कौन सा है, तो आप क्या करोगे, इस लिस्ट में जाओगे, लिस्ट में जाके उसके 3rd इंडेक्स पे जो आइटम स्टोर्ड है दैट विल बी योर 4th आइटम, राइट? अगर मेरे को 6th आइटम निकालना है तो लिस्ट में जाके जो 5th इंडेक्स पे जो आइटम स्टोर होगा दैट विल बी योर 6th आइटम, राइट? तो इंडेक्सिंग हमेशा क्योंकि 0 से स्टार्ट हो रही है तो यू हैव टू डू आइटम नंबर -1, ठीक है? तो इसको अगर एक्सेस करना है तो कैसे करोगे? यू जस्ट नीड टू डू okay, you first have to write the list name, then inside square brackets you have to write the index number. So if I have written 2 here, let's run the code now. तो इसमें क्या हुआ, ये जो हमारी लिस्ट थी जिसके अंदर ये आइटम्स थे 1, 2 and 3, राइट? तो इसमें क्या हुआ कि फर्स्ट इंडेक्स पे 0th इंडेक्स पे 1 स्टोर है, फर्स्ट इंडेक्स पे 2 स्टोर है एंड एट सेकंड इंडेक्स वी हैव 3 एंड दिस इज द आउटपुट ऑल्सो। हमने सेकंड इंडेक्स पे ही चेक किया था एंड द आइटम इज 3, राइट? सो दिस इज हाउ वी कैन एक्सेस द आइटम्स इनसाइड द लिस्ट, ठीक है? अब अगर आपको, ये आपकी लिस्ट थी, ये तो था आपका पॉजिटिव इंडेक्स, ठीक है? सिमिलरली आप नेगेटिव इंडेक्स भी यूज कर सकते हैं। नेगेटिव इंडेक्स भी हमने लास्ट सेशन में डिस्कस किया था। If this is a list here, तो नेगेटिव इंडेक्स लास्ट से शुरू होता है, दिस विल बी एट -1, देन -2, -3, 4, 5 एंड 6, ठीक है? तो अगर ये लिस्ट होती, अगर -4th इंडेक्स पे अगर मैं जाके चेक करती कि क्या आइटम स्टोर्ड है तो दैट विल बी 3, राइट? सो दिस इज हाउ वी कैन डू दिस। तो वो आप पे है, आप अगर पॉजिटिव इंडेक्स यूज करो तो आप पॉजिटिव कर सकते हो। इफ यू वांट टू यूज अ नेगेटिव इंडेक्स देयर देन यू कैन यूज अ नेगेटिव इंडेक्स आल्सो। ओके, आफ्टर दिस अगर आपको फोर लूप अगर लिस्ट में यूज करना है, मान लो मेरे को ये सारे आइटम्स प्रिंट करने हैं, सो फॉर दैट यू कैन यूज अ फोर लूप, राइट? तो वो आप कैसे यूज करोगे? यू जस्ट नीड टू डू दिस थिंग फॉर I in, then you can write the list name here L, right? And then in the next line you can print I. Now let's see how it works. So L contains 1, 2 and 3 inside it.
So what this I is referring to, this I is actually the first item of the list initially, right? जब ये for loop आपका start होगा, उस time पे I will be the first item of the list. So this is I here, right? ये आपका I हो जाएगा. अब इसने बोला कि आपको क्या करना है, लिस्ट L में जाना है और जाके I को प्रिंट कर दो. तो I यहाँ पे 1 था तो सबसे पहले 1 प्रिंट हो जाएगा. इसके बाद क्या करेगा, I जो होगा वो मूव करेगा टू द नेक्स्ट आइटम. ठीक है, अब फिर से वही चीज होगी कि लिस्ट एल में जाके जो नेक्स्ट जो आई है उसको प्रिंट कर दो, तो 2 प्रिंट हो जाएगा एंड सिमिलरली 3 विल बी प्रिंटेड, राइट? सो फॉर लूप भी इसके साथ यूज करके देख लेते हैं. आई हैव डन फॉर आई इन एल एंड देन इन द नेक्स्ट लाइन आई एम प्रिंटिंग द वैल्यू ऑफ आई एवरी टाइम, राइट? सो इन द आउटपुट यू कैन सी इट इज 1, 2 and 3, राइट? अब इसमें कुछ फंक्शंस होते हैं. ये तो हो गया जो बहुत बेसिक चीजें जो हम कर सकते हैं. ठीक है, अब आपकी लिस्ट एल है जिसके अंदर ये 3 आइटम्स हैं. ठीक है, अब आपको क्या करना है, इस लिस्ट में से जाके जितने भी आइटम्स हैं वो सारे आइटम्स रिमूव करने हैं. तो उसके लिए आप क्या करोगे, यू जस्ट नीड टू यूज अ फंक्शन हियर दैट इज द क्लियर फंक्शन. द फंक्शन नेम इज क्लियर एंड हाउ यू नीड टू यूज इट, यू जस्ट नीड टू राइट द लिस्ट नेम डॉट क्लियर. ठीक है, इससे क्या होगा, लिस्ट में जितने भी आइटम्स होंगे वो रिमूव हो जाएंगे और आपकी लिस्ट एम्प्टी हो जाएगी. ठीक है, ये यूज करते ही क्या करेगा, लिस्ट को एम्प्टी कर देगा. जितने भी आइटम्स होंगे सारे आइटम्स रिमूव हो जाएंगे उससे. ठीक है, ये तो था आपका फर्स्ट फंक्शन जब आपको लिस्ट को क्लियर करना है. दूसरा, अगर आपको लिस्ट में कोई आइटम ऐड करना है तो सबसे पहली चीज यहाँ पे लिस्ट में जो आइटम्स होते हैं वो एक पर्टिकुलर ऑर्डर में ही स्टोर होते हैं. जैसे अगर अभी आइटम्स है 1, 2, 3, अगर आपको कोई नया आइटम यहाँ पे इंसर्ट करना है तो दैट आइटम विल बी एडेड टू द एंड ऑफ द लिस्ट. तो ये आपकी लिस्ट एल थी, मैंने बोला मेरे को एक आइटम 4 ऐड करना है, तो वो लिस्ट के एंड में जाएगा और यहाँ जाके स्टोर हो जाएगा. अब ये ऐड करने के लिए फिर से एक फंक्शन होता है दैट इज द अपेंड फंक्शन. फाइन, इसमें आप क्या करते हो, यू जस्ट नीड टू राइट द लिस्ट नेम अगेन एंड देन राइट डॉट अपेंड हियर. आफ्टर दिस यू नीड टू पुट द ब्रैकेट्स और जो भी आइटम आपको अपेंड करना है यू हैव टू पुट दैट आइटम, राइट? सो से वी वांट टू अपेंड 4 इनसाइड इट, सो यू कैन जस्ट राइट 4 हियर. फाइन, तो इससे क्या होगा, जब आप ये चीज करोगे तो इससे 4 लिस्ट में जाके अपेंड हो जाएगा. तो ये चीज हम एक बार करके देख लेते हैं. लेट्स से आई वांट टू अपेंड 4 inside the list and then in the next I am printing the list again. So it should contain 4 items now, that is 1, 2, 3. We had 1, 2, 3 inside our list and now 4 is added inside that list, right? तो ये चीज से कि हम कैसे आइटम्स को अपेंड कर सकते हैं लिस्ट में. अपेंड मीन्स ऐड, राइट? दिस इज एडिंग आइटम्स टू द एंड ऑफ द लिस्ट. Okay, now say I want to count the number of items, or like say I want to count, say this is my list here. Now say I want to count how many times 1 has appeared in the list, right? कि 1 लिस्ट में कितनी बार आया है, 2 कितनी बार आया है, 3 कितनी बार आया है, 4 कितनी बार आया है. अगर ये चीज अगर आपको काउंट करनी है तो उसके लिए आपके पास एक काउंट फंक्शन होता है जिससे आप काउंट कर सकते हैं. ठीक है, तो what you have to do is you just need to write l dot count और जो भी आइटम आपको काउंट करना है just write that item inside the brackets. ठीक है, अब मान लो लिस्ट आपकी ये होती, it has 1, 2, 3, 1, 1, 2 and 3, right? Now say I want to check the count for 1. ठीक है, तो लिस्ट में आप जाओगे, जाके काउंट करोगे 1 कितने टाइम्स है, 1, 2 and 3, so 3 will be returned here, right? तो एक नई लिस्ट बना लेते हैं अब. Let's say the list name is L2 and it has these items. Then in the next line, I'm just counting how many times 1 has appeared in the list and we just need to run this code. And you can see the output was 3, right? तो इसमें हुआ क्या है, ये जो लिस्ट थी इसमें जाके, क्योंकि हमने काउंट फंक्शन में 1 पास किया है तो ये L2 में गया. ठीक है, L2 में जाके इसने काउंट किया कि 1 कितनी बार लिस्ट में आया है और जो उसका जो काउंट था वो उसने रिटर्न कर दिया यहाँ पे, राइट? तो ऐसे हम आइटम्स को काउंट कर सकते हैं. अब अगर आपको लिस्ट से कोई भी आइटम रिमूव करना है तो उसके लिए आपके पास रिमूव फंक्शन होता है. रिमूव फंक्शन क्या करता है कि आपने रिमूव फंक्शन में जो भी आइटम पास किया वो उस आइटम को जाके डिलीट कर देगा. ठीक है, जैसे मेरे पास ये लिस्ट है 1, 2, 3 एंड लेट्स से आई हैव डन l डॉट रिमूव
and inside brackets I have passed 1, राइट। सो इससे क्या होगा, लिस्ट एल पे आप जाओगे, लिस्ट एल पे जाके जो ये जो आइटम है आपका 1, ठीक है, जो कि ये वाला आइटम है आपका, इसको जाके लिस्ट से हम रिमूव कर देंगे, ठीक है। तो ये तो है आपका रिमूव फंक्शन, जिसमें आपको फंक्शन के ब्रैकेट्स में जाके उसका आइटम का नाम, मतलब जो भी आपका आइटम है उस आइटम नेम यू हैव टू पास इनसाइड इट, राइट। अब आपके पास एक पॉप फंक्शन भी होता है यहाँ पे। इस फंक्शन से आप क्या करते हो, इसके अंदर दो ऑप्शन होते हैं, either you can directly use it or you can pass the index number inside it. For example, if you have this list, it contains 1 2 3 inside it, and I have used this function, I just done this thing, ठीक है। ब्रैकेट्स में मैंने अभी कुछ भी पास नहीं किया, तो क्या होगा, अगर आप कुछ भी पास नहीं करोगे ना ब्रैकेट्स में, तो ये मतलब अंडरस्टूड हो जाएगा कि आपको बस लिस्ट एल पे जाना है, जो भी लास्ट आइटम होगा उसको जाके रिमूव कर दो यहाँ से, ठीक है। अगर मैंने यहाँ पे इंडेक्स नंबर पास कर दिया, अभी मैंने एल डॉट पॉप सिर्फ इतना किया था, मतलब ब्रैकेट्स में कुछ भी पास नहीं किया, तो 3 तो ऑलरेडी रिमूव हो चुका, ठीक है। नाउ से आई हैव डन, लाइक इनसाइड ब्रैकेट्स आई हैव पास्ड 1। इससे क्या होगा, ये लिस्ट एल पे जाएगा, ठीक है। फर्स्ट इंडेक्स पे जो आइटम स्टोर है, सो दिस इज एट 0th इंडेक्स, दिस इज एट इंडेक्स 1। फर्स्ट इंडेक्स पे जाके जो आइटम होगा, दैट इज द आइटम 2 हियर, इट विल रिमूव दैट आइटम, राइट। तो इस केस में 2 रिमूव हो जाएगा, राइट। अगर ऐसे, अगर ये लिस्ट होती है आपके पास, तो अगर मेरे को 16 यहाँ से रिमूव करना है, तो दिस इज इंडेक्स 0 1 2 3 4, तो आपके पास दो ऑप्शन है। फर्स्ट ऑप्शन इज you can use a remove function, so for that you have to write l dot remove and inside brackets you have to pass 16, ठीक है। तो वो लिस्ट में जाएगा, लिस्ट में जाके 16 को रिमूव कर देगा। What is the second option here? Second option is that you can use the pop function and inside the brackets you have to pass the index number, right? So this is your list here, and inside the list the index number for 16 is 3. So inside the brackets you have to pass 3, ठीक है। इससे भी आपका 16 रिमूव हो जाएगा। और एक और ऑप्शन क्या है कि आप पहले पॉप फंक्शन यूज करोगे, ब्रैकेट्स में आपने कुछ भी पास नहीं किया, ठीक है, उससे 5 रिमूव हो जाएगा। फिर से आपने यही फंक्शन यूज किया, अब 5 तो रिमूव हो चुका था, अब लास्ट आइटम क्या बचा आपका 16, तो हम जाके 16 को रिमूव कर देंगे विद द हेल्प ऑफ द सेकेंड कमांड। लेकिन ये इतना ज्यादा इफेक्टिव नहीं है। अब मान लो मेरे को फर्स्ट ही आइटम रिमूव करना होता, ये वाला, ठीक है, तो आप पहले इसके लिए पॉप यूज करते, फिर यहाँ पे करते, फिर 9 को रिमूव करते, फिर 2 को करते, फिर आप 1 पे आते। उसके लिए आपको पहले वाले सारे आइटम्स रिमूव करने पड़ते हैं, राइट। तो आप क्या कर सकते हो, डायरेक्टली यू कैन यूज अ रिमूव फंक्शन ईदर, और यू कैन यूज द पॉप फंक्शन, राइट। इनसाइड द पॉप फंक्शन यू हैव टू पास द index number also. So these were the basic functions that we have to cover in list. अब इसके अलावा लिस्ट में एक और आपके पास कॉन्सेप्ट होता है, दैट इज लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन। अच्छा, इससे पहले लेट्स डिस्कस 2D एंड 3D लिस्ट। सो 2D लिस्ट इज बेसिकली 2 डायमेंशनल लिस्ट, ठीक है। तो जैसे आपने एक 1D लिस्ट बनाई, सो यू हैव दिस लिस्ट हियर एंड इट कंटेन्स 1 2 3 इनसाइड इट, ठीक है। नाउ सो यू हैव अ लिस्ट B व्हिच कंटेन्स 4 5 एंड 6 इनसाइड इट, ठीक है। ये आपके पास दो लिस्ट हैं। अब आपको एक 2 डायमेंशनल लिस्ट इससे क्रिएट करनी है। तो 2 डायमेंशनल लिस्ट में क्या होगा कि आपके पास एक लिस्ट होगी जिसके अंदर बहुत सारी 1 डायमेंशनल लिस्ट होंगी। नाउ व्हाट इज दिस 1 डायमेंशनल लिस्ट? दिस A is your 1D list, this B is your 1D list. Now say I want to combine this A and B and I want to generate a 2 डायमेंशनल list that should contain A and B inside it. So for that what you have to do is you just need to give the name to the list. So let's say the name is, let's say it is 2 underscore dim, and then you have to put square brackets. Inside the square brackets you have to put further 1 डायमेंशनल लिस्ट, राइट। तो सबसे पहले मैंने एक 1D लिस्ट बनाई, ठीक है, और एक और बना दी, कितनी भी बना सकते हैं। इसके अंदर आपने जाके आइटम्स रख दिए, सो दिस इज 1 2 एंड 3 एंड दिस इज 4 5 एंड 6। इट इज नॉट रिक्वायर्ड कि लिस्ट में अगर यहाँ पे अगर 3 आइटम्स है तो इसमें भी 3 ही होंगे, कितने भी हो सकते हैं। यहाँ पे 3 हो गए, हो सकता है यहाँ पे से 4 एंड 5 हैं। सो दिस इज नॉट नेसेसरी कि हर बार आपको जितने भी आप 1 डायमेंशनल लिस्ट बनाओगे उनमें आपके पास इक्वल नंबर ऑफ आइटम्स ही हो, फाइन। तो इसकी अगर आप लेंथ अगर फाइंड करोगे, मैं इसको यहाँ दोबारा बना देती हूँ एक बार।
से दिस इज द लिस्ट हियर, राइट? तो इसके अगर लेंथ चेक करनी है फिर से आप लेंथ फंक्शन ही यूज करोगे एंड यू हैव टू पास दिस लिस्ट नेम इनसाइड इट। लेकिन इस केस में क्या लेंथ रिटर्न होगी? इट विल नॉट बी द नंबर ऑफ आइटम्स इनसाइड इट, rather it would be the number of one dimensional list contained inside the 2D list। ठीक है, तो इस 2 dimensional list में कितनी 1D लिस्ट है? दिस इज द फर्स्ट लिस्ट एंड दिस इज द सेकंड लिस्ट, राइट? तो लेंथ में क्या रिटर्न, अगर आप लेंथ फंक्शन यूज करोगे तो उससे क्या रिटर्न होगा? इट विल बी 2, राइट? 2 रिटर्न हो जाएगा ना। ये आपकी पहली लिस्ट थी, ये आपकी दूसरी लिस्ट है, 2 ही लिस्ट है उसके अंदर। अगर यहाँ पे मैंने एक और लिस्ट ऐड कर दी जिसमें सिर्फ एक ही आइटम है 7, तो इस केस में लेंथ में 3 रिटर्न हो जाएगा, राइट? अब अगर आपको इसके साथ इंडेक्सिंग यूज करनी है तो सबसे यहाँ पे इंडेक्सिंग में ना आपका सिंटेक्स कुछ ऐसे होता है कि सबसे पहले आपको अपनी 2D लिस्ट का इंडेक्स डालना पड़ता है, फिर 1D लिस्ट में जाके आइटम का इंडेक्स डालना पड़ता है, ठीक है? तो ये जो आपकी 1D लिस्ट है, दिस इज एट इंडेक्स 0, दिस इज एट इंडेक्स 1 एंड दिस इज एट इंडेक्स 2, राइट? अब ये जो आपकी 0th इंडेक्स पे एक कंप्लीट लिस्ट प्रेजेंट है ना, इसमें जाके आपको आइटम्स का फर्दर इंडेक्सिंग आपको प्रोवाइड करनी पड़ेगी। सो 1 इज एट इंडेक्स 0, दिस एट 1, दिस एट 2, राइट? फर्स्ट लिस्ट के अंदर जो लिस्ट फर्स्ट इंडेक्स पे है उसमें 4 इज एट इंडेक्स 0, दिस इज एट 1, दिस इज एट 2, एंड इनसाइड द सेकंड लिस्ट, द लिस्ट एट इंडेक्स 2, वी हैव ओनली वन आइटम एंड दैट विल बी हैविंग एन इंडेक्स ऑफ 0, राइट? तो अब आप क्या करोगे इसमें कि से आई वांट टू फाइंड द इंडेक्स फॉर 5, राइट? मेरे को 5 निकाल के लाना है लिस्ट से। तो सबसे पहले आपको लिस्ट का नाम लिखना पड़ेगा, ठीक है? देन यू हैव टू पुट स्क्वायर ब्रैकेट्स एंड यू हैव टू यूज इट 2 टाइम्स। वाई 2 टाइम्स? पहले आप जाओगे कि 5 कौन सी 1D लिस्ट में प्रेजेंट है। सो इज 5 प्रेजेंट इनसाइड द लिस्ट एट इंडेक्स 0? नो, इट इज प्रेजेंट इनसाइड द लिस्ट एट इंडेक्स 1। सो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू राइट 1 इनसाइड द ब्रैकेट्स, ठीक है? इससे आप उस 1D लिस्ट तक पहुंच गए जहां पे 5 प्रेजेंट है। नाउ इनसाइड दैट 1D लिस्ट 5 is present at index 1, ठीक है? 4 is at 0, 5 is at 1, तो you have to write 1 again and this will return me 5, ठीक है? ऐसे हम 2 dimensional list create कर सकते हैं। अगर आपको 3D लिस्ट बनानी है तो 3D लिस्ट में भी सेम कॉन्सेप्ट ही यूज होगा। इसमें बस क्या होगा कि आपके पास एक लिस्ट होगी जिसके अंदर बहुत सारी 2D लिस्ट होंगी। तो अगर मेरे को 3D लिस्ट बनानी है, let's say this is my 3D list and it contains these 2 2D list inside it, ठीक है? अब 2D लिस्ट में क्या होगा? 1D लिस्ट होंगी। सो दिस इज 1, 2, लेट्स से दिस इज द लिस्ट हियर, ठीक है? ये आपकी 3D लिस्ट बन गई। इसमें क्या है, आपके पास बहुत सारी 2D लिस्ट है, लाइक दिस इज योर फर्स्ट 2D लिस्ट एट इंडेक्स 0, दिस इज योर सेकेंड 2D लिस्ट एट इंडेक्स 1, ठीक है? अब इस 0th इंडेक्स पे जो 2D लिस्ट है इसके अंदर ये आपकी पहली 1D लिस्ट है, दिस इज योर सेकेंड 1D लिस्ट एंड सिमिलरली हियर दिस इज 0, दिस इज 1 एंड दिस इज 2, फाइन? अब जब आप इनके अंदर जाओगे तो आइटम्स का भी आपको इंडेक्सिंग करना पड़ेगा। सो दिस इज एट इंडेक्स 0, दिस इज 1, ये भी 0, 1, दिस इज एट 0, 1, 0 एंड 0, राइट? अब अगर आपको लेंथ फाइंड करनी है, सबसे पहले लेंथ में जाके लिस्ट का आप नाम रख दोगे, ठीक है? तो इससे लेंथ में क्या रिटर्न होगा अगर आप लेंथ फंक्शन यूज करोगे? द नंबर ऑफ 2D लिस्ट इनसाइड अ 3D लिस्ट। तो कितनी 2D लिस्ट है यहाँ पे? 2, सो 2 विल बी रिटर्न फ्रॉम हियर, राइट? अब अगर आपको इंडेक्सिंग के साथ अगर खेलना है यहाँ पे, तो इंडेक्सिंग के लिए आप क्या करोगे? लेट्स से आई वांट टू फेच आउट 7 फ्रॉम हियर। सो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू राइट द नेम ऑफ द 3D लिस्ट, राइट? आफ्टर दैट विल बी हैविंग 3 ब्रैकेट्स। मतलब 1D के केस में एक ब्रैकेट था क्योंकि उसमें सिर्फ आइटम नंबर ही लिखना था। 2D के केस में आपको पहले 1D लिस्ट नंबर लिखना पड़ेगा, फिर आइटम नंबर। यहाँ पे पहले 2D लिस्ट नंबर लिखोगे, फिर 1D लिस्ट नंबर लिखोगे और फिर आइटम नंबर लिखोगे, राइट? तो 7 इज प्रेजेंट इनसाइड द सेकेंड 2D लिस्ट दैट इज एट इंडेक्स 1, ठीक है? तो यहाँ पे आप 1 डाल दोगे। देन 7 इज प्रेजेंट एट इनसाइड द फर्स्ट, सॉरी दिस इज द सेकेंड 1D लिस्ट, राइट? तो जो आपकी सेकेंड 1D लिस्ट है वो इंडेक्स 1 पे होगी, राइट? इसके अंदर जो 7 जो आइटम है वो इंडेक्स 0 पे प्रेजेंट है, तो यू हैव टू राइट 0 हियर, ठीक है? तो इससे क्या होगा? यू विल गेट 7, ठीक है? ऐसे अगर मेरे को 4 अगर फेच करना था तो उसके लिए फिर से आप सेम चीज करोगे। ब्रैकेट्स में आपको क्या लिखना पड़ेगा? सबसे पहले 2D लिस्ट नंबर दैट इज 0, ठीक है? ये आपकी 0th 2D लिस्ट है। इसमें जाके जो फर्स्ट इंडेक्स पे जो 1D लिस्ट प्रेजेंट है
उसका आपने नंबर लिख दिया, and 4 is again at index 1, so you have to write 1 here and this will return you 4. ठीक है, so this is how we can do this. Okay, so now let's move on to the next concept. That is the list comprehension. ठीक है, अभी तक जो आपने यूज किया है दैट इज योर लिस्ट कन्वेंशनल मेथड. अब लिस्ट कॉम्प्रीहेंशन मेथड में आप क्या करते हो? So for example, I have this list. It contains 1, 2 and 3 inside it. ठीक है, तो अभी तक जो हमने किया वो लिस्ट कन्वेंशनल मेथड है. ठीक है, तो लिस्ट कन्वेंशनल मेथड में आपने क्या किया? अगर आपको ये लिस्ट बनानी है तो सबसे पहले आपने एक एम्प्टी लिस्ट ली. ठीक है, इस एम्प्टी लिस्ट में जाके आपने फॉर लूप यूज किया. ठीक है, और okay, let's say we have for I in L and let's say I want to append I inside it. ठीक है, ठीक है, तो हमने अभी क्या किया, एक लिस्ट है आपके पास L जो अभी एम्प्टी है. ठीक है, इसके अंदर अभी कोई आइटम्स नहीं है. नाउ व्हाट आई एम डूइंग इज I जो होगा आपका फर्स्ट आइटम को, मतलब I आपका इनिशियली क्या होगा, दिस विल बी 0, राइट. तो अगर आपको 1 से स्टार्ट करना है तो लाइक यू हैव टू चेंज इट, राइट. लेकिन ये 0 से स्टार्ट होगा, राइट. तो सबसे पहले आप क्या करोगे, उसने क्या किया, L डॉट अपेंड I, राइट. तो इसके लिए या फिर यहाँ पे ना हम वाइल लूप यूज कर लेते हैं, उससे आपको ज्यादा अच्छे से समझ आ जाएगी ये चीज, क्योंकि हमें 1 2 3 4 ही लेके आना है लिस्ट में. सो लेट्स से आई हैव this list that is empty right now. Then I have used the while loop. So let's say initially I is equal to 1. Then we have to use while I in the list. ठीक है, और फिर हम आके लिस्ट में आइटम्स को अपेंड करेंगे. तो जब आप आइटम्स को अपेंड करोगे तो सबसे पहले आपको 1 अपेंड करना है ना, तो I की वैल्यू आपकी 1 होनी चाहिए, राइट. तो आपको क्या करना है, अगर आपने लिख दिया फॉर while I in L या फिर फॉर I in N, ठीक है, तो आप लिस्ट में जाओगे, लिस्ट के अंदर तो कोई आइटम ही नहीं है ना, तो I क्या होगा उस टाइम पे, I will be nothing, राइट. तो इसके लिए आपको रेंज फंक्शन की रिक्वायरमेंट पड़ेगी. यहाँ पे हम ऐसे इस चीज को कर ही नहीं पाएंगे. सो नाउ व्हाट वी हैव टू डू इज, जैसे हमने एक मैथड जो देखा था कि अगर लिस्ट में अगर हमें आइटम्स प्रिंट करने हैं तो यू कैन यूज द लिस्ट नेम डायरेक्टली, लेकिन कहीं कहीं पे हमें रेंज फंक्शन की भी रिक्वायरमेंट पड़ती है. सो फॉर दैट फर्स्ट ऑफ ऑल विल बी हैविंग एन एम्प्टी लिस्ट. अब इस लिस्ट में आपको 1 से लेके 3 तक, मतलब आपको एक रेंज दे दी कि इसी रेंज में आइटम चाहिए. ठीक है, तो इसके लिए जब आप फॉर लूप यूज करोगे ना, सो यू हैव टू यूज द रेंज फंक्शन हियर फॉर I इन रेंज 1 to 4, क्योंकि 3 तक जाना है तो यहाँ पे 4 लिखना पड़ेगा, राइट. देन यू हैव टू डू L डॉट अपेंड, कि L में जाके there is a comment that a student has started the workshop today only. So I just want to tell you that the pre-recorded lectures are there on the YouTube channel itself for the Geeks for Geeks School. You can visit there and you can have a look over the previous 3 sessions. Also, when you visit on the channel, you can also visit the robotics workshop there. So we have a mentor, Ronak. He's taking the robotics workshop. So you can visit that, and if you're interested, you can obviously follow that, right? उसके अलावा अगर आपको मैथ्स में इंटरेस्ट है, सो वी हैव मैथ्स वर्कशॉप ऑल्सो करंटली गोइंग ऑन, एंड आवर मेंटर दिशा इज टेकिंग दैट वर्कशॉप. सो डू विजिट दैट, गिव इट अ ट्राई, एंड इफ यू फील इंटरेस्टेड टुवर्ड्स दैट, जस्ट गो थ्रू दैट. लाइक जितने भी लेक्चर्स हैं आप उनको देखो, एंड आपको कोई भी डाउट्स हो तो उनको कॉमेंट सेक्शन में जाके पूछ लो, राइट. तो आपको जितनी भी वर्कशॉप्स होती है जो लाइव जा रही है वो आपको यूट्यूब चैनल पे प्री रिकॉर्डेड रिकॉर्डेड भी मिल जाएंगी, तो आप उनको वहां जाके विजिट कर सकते हैं. ठीक है, अगर आपका कोई भी सेशन मिस हो रहा है तो आप उनको बाद में देख सकते हैं जाके. ओके, सो वी वर हियर. हाँ, हम आइटम्स अपेंड कर रहे थे लिस्ट में. सो वी हैव दिस फॉर I इन रेंज 1, 4, राइट.
तो हमने क्या था, अपेंड किया था आई को, राइट। तो सबसे पहले आई की क्या वैल्यू है, आई की वैल्यू है 1, ठीक है, तो 1 जाके अपेंड हो जाएगा। अब आई की वैल्यू 2 हो जाएगी, तो फिर 2 जाके अपेंड हो जाएगा, फिर आई की वैल्यू 3 हो जाएगी, 3 जाके अपेंड हो जाएगा। जब आई की वैल्यू 4 होगी तो दैट विल बी इक्वल टू द अपर रेंज, तो उस केस में कुछ भी अपेंड नहीं होगा लिस्ट में, एंड विल जस्ट कम आउट ऑफ इट। इसके बाद आप एल को प्रिंट कर सकते हो, एंड दिस वाज योर लिस्ट कन्वेंशनल मेथड, ठीक है, ये हमने कन्वेंशनल मेथड से किया था। अभी जो कॉम्प्रीहेंशन मेथड है ये कैसे काम करता है, कन्वेंशनल मेथड से ही इसको बनाने का ट्राई करते हैं। तो इसमें क्या होता है कि आप जो भी चीज करोगे ना वो एक सिंगल लाइन में कवर हो जाएगी, ठीक है। जैसे आपने सबसे पहले एक लिस्ट बनाई, एम्प्टी लिस्ट, तो से दिस इज माय लिस्ट हियर, ठीक है। अब जो आपने यहाँ पे फोर लूप यूज किया है ना, इसको आप एक्चुअली एज इट इज यहाँ लिख देते हो, फॉर आई इन रेंज 1,4, ठीक है। अब जो आइटम जो आपको अपेंड करना है, तो वो आइटम अपेंड करने के लिए यहाँ पे आपने आई अपेंड किया था, लिस्ट कॉम्प्रीहेंशन मेथड में सबसे पहले आप आइटम को अपेंड करते हो, सो दिस विल बी आई हियर, ठीक है। अपेंड फंक्शन यूज करने की जरूरत नहीं होती, जो भी आप पहली चीज जो लिखते हो ना वो एक्चुअली अंडरस्टूड होता है कि ये जो चीज आपने मेंशन कर दी यहाँ पे ये डायरेक्टली लिस्ट में जाके अपेंड हो जाएगी, एंड द रेंज फॉर दिस विल बी लाइक जो फोर लूप जो आपने यूज किया वो हम एज इट इज इसके बाद लिखते हैं। अगर कोई भी कंडीशनल स्टेटमेंट्स वगैरह अगर आपको इंक्लूड करनी है तो वो इसके बाद चली जाएगी। तो ये कुछ इस तरीके से इसका सिंटेक्स होता है। सबसे पहले आपको अपना लिस्ट नेम लिखना होता है, equals, then inside brackets you have to first write the item to be appended, right? Then you have to write the for loop, एंड देन अगर कोई कंडीशंस अगर आप अप्लाई कर रहे हो बीच में, कोई इफ कंडीशन या फिर कुछ अप्लाई किया है, सो यहाँ पे आपको अगर कोई कंडीशंस है तो आप वो मेंशन कर देते हो, ठीक है। तो ज्यादा डिफरेंस नहीं होता, बस इतना ही डिफरेंस होता है कि आपको अपेंड फंक्शन नहीं यूज करना, जो भी चीजें आप करोगे सब एक लाइन में ही कवर हो जाते हैं। सबसे पहले जो भी आइटम अपेंड करना है वो लिख दो, फिर फोर लूप लिख दो, उसके बाद कंडीशंस जो भी आपको ऐड करनी है वो आप कर सकते हो, राइट। सो दिस वाज अबाउट लिस्ट। Now let's move on to tuples in Python. Ashwini, your doubt is not clear to me. Can you put it again? Okay, so tuples में क्या होता है, लिस्ट और ट्यूपल्स में एक डिफरेंस होता है। पहली चीज तो लिस्ट को आप स्क्वायर ब्रैकेट्स में यूज कर रहे थे, राइट। ट्यूपल्स को आप सर्कल ब्रैकेट्स में जाके पुट करते हो, ठीक है। लिस्ट में आपने एक बार कोई भी आइटम ऐड कर दिया, आप उसके अंदर और आइटम भी ऐड कर सकते हो, और आप उसमें से आइटम्स मतलब रिमूव कर सकते हो, उनको अपडेट कर सकते हो, राइट। तो लिस्ट आपकी जो होती है चेंजेबल होती है, राइट। या फिर इसी चीज को आप कई बार देखोगे इस तरीके से भी लिखे होते हैं, दैट इज म्यूटेबल, ठीक है, कि आप उसमें जाके और आइटम्स ऐड कर सकते हो और आप उसके आइटम्स को अपडेट भी कर सकते हो, बट ट्यूपल्स आर अनचेंजेबल। एक बार आपने जो ट्यूपल बना दिया, आप उसमें उसके आइटम्स को जाके चेंज नहीं कर सकते, दिस इज द ओनली डिफरेंस, राइट। अब जैसे मान लो ये आपकी लिस्ट थी, यहाँ पे इट कंटेन दीज आइटम्स। Similarly, we can have a tuple here जिसके अंदर यही आइटम्स प्रेजेंट हैं। Just take care of this thing that it will be unchangeable, or we can say it is immutable, right? सर्कल ब्रैकेट्स में होता है, स्क्वायर ब्रैकेट्स में नहीं होता। अब अगर आपको इसका कोई आइटम एक्सेस करना है तो उसके लिए फिर से आप इंडेक्सिंग यूज करते हो। इन द सेम वे यू कैन यूज पॉजिटिव और नेगेटिव इंडेक्सिंग। अगर आपको इसकी लेंथ निकालनी है फिर से आप वही लेंथ फंक्शन यूज करोगे, वही चीजें होती हैं, बस एक चीज का ध्यान रखना, दैट दिस विल बी अनचेंजेबल, राइट। एक बार जो चीज आपने इसके अंदर डाल दी, यू कांट चेंज दैट आइटम आफ्टर दैट, राइट। दिस इज द ओनली डिफरेंस बिटवीन ट्यूपल्स एंड लिस्ट। अब इसके अलावा आपके पास सेट्स भी होते हैं। अब सेट्स और लिस्ट और ट्यूपल्स अगेन आपके पास एक डिफरेंस होता है। तो अगर हम बात करें लिस्ट की, तो लिस्ट आपका चेंजेबल था, राइट। और इसमें जब आप आइटम्स को ऐड कर रहे थे तो वो एक फिक्स्ड ऑर्डर में ऐड हो रहे थे। जैसे अगर आपके पास अभी 1 2 3 है लिस्ट में, तो जो नेक्स्ट आइटम अगर आप ऐड करोगे ना वो लास्ट में जाके ऐड हो जाएगा, राइट। सो दिस वाज ऑर्डर्ड, राइट। अब अगर आप ट्यूपल की बात कर रहे हो तो ऑर्डर तो ये भी है कि आपने मतलब एक स्पेसिफिक ऑर्डर में ही इसके अंदर आइटम्स होते हैं, बट दिस इज अनचेंजेबल,
फाइन। सेट्स में क्या होता है, ये आपका अनऑर्डर्ड होता है, और इसमें अगर आपको आइटम्स ऐड करने हैं तो उसके लिए यू कैन यूज द ऐड फंक्शन है। मतलब आपने जो भी आइटम्स बनाए ना, सिर्फ एक सॉरी आपने जो भी सेट बनाया, सो द सेट नेम इज एस एंड इनसाइड दिस सेट इट विल बी इनसाइड कर्ली ब्रेसेस, और से आपके पास ये आइटम्स है इसके अंदर, ठीक है। तो अगर आपका फोर्थ आइटम कोई आ रहा है तो इट इज नॉट नेसेसरी दैट इट विल बी एडेड इन द एंड ओनली, ठीक है, वो नेसेसरी नहीं होता बिकॉज दिस इज अनऑर्डर्ड, फाइन। अब इसमें एक चीज होती है, अगर आपको कोई नया आइटम ऐड करना है तो उसके लिए यू यूज दिस थिंग दैट इज द ऐड फंक्शन, यू हैव टू राइट एस डॉट ऐड एंड देन इनसाइड ब्रैकेट्स यू हैव टू पुट द आइटम नेम, मतलब जो भी आपका आइटम जो कि आपको ऐड करना है अपने सेट में, आपको डायरेक्टली यहाँ पे लिख सकते हैं। तो अगर यहाँ पे आपका अगर ये अनऑर्डर्ड है तो ऑब्वियसली यू कांट यूज द कॉन्सेप्ट ऑफ इंडेक्सिंग इनसाइड सेट्स, ठीक है। यहाँ पे आप इंडेक्सिंग यूज नहीं कर सकते, ट्यूपल्स में इंडेक्सिंग विल बी देयर एंड इनसाइड लिस्ट ऑल्सो इंडेक्सिंग विल बी देयर, ठीक है। तो यही आपका मेजर डिफरेंस होता है। जस्ट रिमेंबर दैट लिस्ट इज चेंजेबल, ट्यूपल्स इज अनचेंजेबल एंड लिस्ट एंड ट्यूपल्स आर इन अ ऑर्डर्ड मैनर, ठीक है। सेट में आप इंडेक्सिंग यूज नहीं कर सकते एंड दिस विल बी अनचेंजेबल, राइट। So I just hope all these things are clear to you. This is all that we have to discuss today. अश्वनी, इंडेक्सिंग इज समथिंग जब आपके पास कोई लिस्ट है उसके अंदर बहुत सारे आइटम्स हैं मान लो, ठीक है। अब मैंने आपको बोल दिया कि आपके पास एक लिस्ट है जिसमें 1 लाख आइटम्स है। अब मैंने आपको बोल दिया कि 50,000 पे जो आइटम है वो निकाल के दे दो मेरे को, तो आप क्या करोगे, एक तो आपके पास ऑप्शन है कि आप पूरा 50,000 तक काउंट करो, 50,000 नंबर पे जो आइटम रखा है वो लाके मेरे को दे दोगे, राइट। लेकिन इंडेक्सिंग ने तो बल्कि चीजें इजी कर दी कि जो आपका आइटम नंबर है उसमें से 1 माइनस करो और सीधा आपको वहां से आइटम मिल जाएगा। तो उसमें आपको एक्सेल यूज करने की या फिर कोई और चीज यूज करने की जरूरत है ही नहीं। इंडेक्सिंग इज अगेन अ सिंपलर थिंग, फाइन। इसके अलावा अगर आपको कोई भी डाउट्स होते हैं तो यू कैन पुट इट इन कमेंट्स आल्सो। Rahul, Python is going on right now. This was a doubt. So we are currently going on with Python. So what you can do is you can visit our GFG school channel. वहाँ पे आपको अगर ऐप लैब की अगर आपको वीडियोस देखनी है, मतलब अगर इफ यू वांट टू क्रिएट एनी ऐप और गेम, सो यू कैन विजिट द ट्यूटोरियल्स देयर, राइट। रोबोटिक्स सीखना है उसके ट्यूटोरियल्स यू कैन विजिट देयर, एंड इफ यू आर इंटरेस्टेड इन मैथ्स अ वर्कशॉप इज करंटली गोइंग ऑन, you can visit that also. So I just hope everything till this point is clear to you. In the next session, we'll be discussing about arrays, NumPy arrays in Python. And most probably we'll be starting with dictionaries also. So thank you so much. Bye-bye. Take care and stay safe.